Hello everyone. So this is Mihir, your educator. I welcome you all to Arpita Sharma classes. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. So, if you want to join Unacademy Plus, then use code Sharma20 SHARMA20. So, if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount. And these are the courses of ancient history and medieval history, which will be taken up by Arpita ma'am on Unacademy Plus. Okay, so you can see that the course for the ancient history is going to start. The course for the ancient history has already been started from 6 July, and the course for the medieval history is going to start from the 13 July, right? So if you want to join Unacademy Plus, then use code Sharma20 SHARMA20 to get 10% discount. Now let us start with our today's topic. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, राइट। हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है? देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज आर मेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इट इज मेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 है, वहां से उसके अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनी थी, राइट। अब ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके काम क्या होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है, इफ देयर इज एनी पब्लिक अथॉरिटी, अब ये जो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है वो आरटीआई एक्ट के अंदर डिफाइंड होती है। सो इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन wants some particular information from this particular public authority, then what this person will do, this person will go to the public authority and file the RTI application, right? Now under right to information act, this particular public authority is directed to provide the information to this particular person, right? Under right to information act, this public authority should give the required information to this particular person. But if public authority is not giving any information, if public authority is not responding to the RTI filed by this particular person, right? If this public authority is not responding to the RTI filed by this particular person, then this particular person can go to the Central Information Commission, right? This person can go to Central Information Commission, and Central Information Commission will take the required action. Okay, so this is the function of the Central Information Commission. Now, what is the jurisdiction of the Central Information Commission? Right? What is the jurisdiction of this Central Information Commission? Under Government of India, under central government, right? Under central government and under union territories. Union territories. Under the central government and union territories, there are offices, right? All the offices under the central government and union territories, financial institutions, right? Financial institutions, public sector undertakings, right? Public sector undertakings. So all these offices are under the jurisdiction of the Central Information Commission. ठीक है, देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जितनी भी ऑफिसेज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, तो ये सबके ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो है, अगर वो ये पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाता है, अगर वो आरटीआई फाइल करता है, and if this public authorities are not responding, then the person can go to Central Information Commission. Okay, अब देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कुछ कंपोजिशन भी होती है, राइट? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? So this Central Information Commission will consist of
वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, देयर वुड बी वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, राइट, एंड देयर वुड बी अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और बाकी के हो गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, ओके, ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर एक तो हो गए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, और एक तो हो गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। दिस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन नॉट बी मोर देन 10। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन या फिर कौन से क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से कोई पर्सन जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मेंबर बन सकता है। तो देखो, देयर शुड बी पर्संस ऑफ एमिनेंस, पर्संस ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, इन पब्लिक लाइफ, राइट, with wide knowledge, with wide knowledge and experience in various fields, ठीक है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये होता है। बाद में ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, the person should not be a member of the parliament, and person should not be a member of state legislative assembly, and the person should not be holding office of profit, right, person के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, ओके। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस, राइट। तो क्या क्या क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशंस होते हैं, तो जितने भी जो पर्सन्स जो होते हैं, पर्सन शुड बी हैविंग एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस फील्ड्स, और जो पर्सन है ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द पर्सन शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो सारे क्वालिफिकेशंस है, क्राइटेरिया किसी के पास होने चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ओके गाइस। देखो, अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है इट वुड बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इनकी अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे किसी को अपॉइंट नहीं कर देंगे, देयर वुड बी अ 3 मेंबर कमिटी, राइट, देयर वुड बी अ 3 मेंबर कमिटी। दिस 3 मेंबर कमिटी इज गोइंग टू रिकमांड, इज गोइंग टू रिकमांड द नेम्स टू द प्रेसिडेंट, ओके। और ये 3 मेंबर कमिटी के अंदर कौन कौन होंगे, 3 मेंबर कमिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर, लीडर ऑफ अपोजिशन वुड बी देयर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोक सभा वुड बी देयर, राइट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोक सभा वुड बी देयर, and there would be union cabinet minister, right, there would be union cabinet minister, and this union cabinet minister would be nominated by the prime minister, right। तो देखो, एक 3 मेंबर कमिटी होती है, राइट, 3 मेंबर कमिटी के अंदर कौन कौन होता है, देयर वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 3 मेंबर कमिटी के अंदर देयर वुड बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, एंड देयर वुड बी कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, दे वुड बी ही वुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो 3 मेंबर कमिटी है वो नेम्स को रिकमेंड करेगी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, राइट। और ये जो 3 मेंबर कमिटी है उनके अंदर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, he would be the head of this particular 3 member committee. So this was about the appointment, right। अब टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस, तो देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर एक तो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, देयर वुड बी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड देयर वुड बी इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनका जो टेन्योर है, ठीक है, इनका जो टेन्योर जो है इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इनका जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना, मैक्सिमम एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो तो 65 ईयर्स ही रहने वाला है, राइट, इट वुड बी 65 ईयर्स। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जितने भी मेंबर्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर होते हैं उनका जो टेन्योर है वो डिटरमाइन करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर मतलब वो 3 साल तक रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे, ठीक है। देखो पहले क्या था कि ये टेन्योर फिक्स हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आई थी। तो आज हम अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो एक्ट के अनुसार, ठीक है, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है उनका जो टेन्योर है, उनका जो टेन्योर मतलब वो कितने साल ऑफिस में रहेंगे, ठीक है, कितने साल ऑफिस में रहेंगे, वो जो टेन्योर है सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, मतलब अगर उनको टेन्योर, उनका टेन्योर 3 साल होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कितने साल तक ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस में रह सकते हैं। दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और मैक्सिमम एज लिमिट जो हो गई वो हो गई 65 ईयर्स। देखो टेन्योर तो गवर्नमेंट डिसाइड ही करने वाली है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर 3 साल का होगा, ठीक है, सपोज 3 साल का है तो ये जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो तो 65 ईयर्स ही रहने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट इज 65 ईयर्स, मतलब जब तक वो 65 ईयर्स तक नहीं हो जाते, ठीक है, वो मैक्सिमम एज लिमिट होती है। बाद में वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अभी हम लोग रिमूवल देखते हैं, किस तरह से हम लोग इनको रिमूव कर सकते हैं। तो देखो रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। तो ऑन व्हाट पर्टिकुलर ग्राउंड्स द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड। सबसे पहले इफ इज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, राइट। इंसॉल्वेंट मतलब अगर वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव हिम। देन doing anything like paid employment outside his office, paid employment outside his office, right, outside his office, right। बाद में अगर वो अनफिट है, ठीक है, इफ ही इज बेसिकली अनफिट बिकॉज ऑफ बाय रीजन ऑफ infirmity of mind, by reason of infirmity of mind और बॉडी, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन से ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे रिमूव कर सकते हैं। बाद में इफ इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, राइट, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस which involves moral turpitude, right, which involves moral turpitude, right। then अगर उसने ऐसे कुछ फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल एसेट्स, ओके। इफ ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसने एक्वायर कर लिए है, ओके। इफ ही हैज एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो सकती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव हिम। देन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, राइट, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो ये सारे ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो देखो कौन से ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो, अगर वो उसकी ऑफिस के बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होता है तो, अगर वो अनफिट है, ठीक है, रीजन ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, राइट। If the information commissioner is declared unfit because of reason of infirmity of mind or body, if he is convicted of any offense which involves moral turpitude, अगर उसने कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट उसने एक्वायर कर लिया है या फिर मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के अंदर वो डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, तो ये सारे ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। देखो तो अगर जितने भी जो केस है ना, ये लास्ट वाले केस प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, मतलब ये जो मिसबिहेवियर अगर इनकैपेसिटी का कोई केस है ना, दिस पर्टिकुलर केस ऑफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, अगर ये वाला कोई केस है तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रेफर करना पड़ेगा फॉर इंक्वायरी, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे अगर रिमूव करना है तो वो वाले केस के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है
वो सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रेफर करेंगे फॉर इंक्वायरी। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस करता है कि ये पर्सन को रिमूव कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। और देखो जितनी भी सैलरी होती है, ठीक है, सैलरी हो गया, सैलरी अलाउंसेस, तो ये जो सैलरी अलाउंसेस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनकी जो सैलरी होती है, इनकी जो अलाउंसेस जो होते हैं, वो सबको डिटरमाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सीजी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके गाइस, सो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी देखो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो हर साल अपना जो एनुअल रिपोर्ट जो है, हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते हैं, ठीक है। बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल पुट दिस रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो देखो सैलरी अलाउंसेस, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। ओके, ठीक है। तो देखो ये हमने पढ़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो देखो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, तो ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऊपर से ही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब दोनों के अंदर सेम ही है। मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो दोनों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ही बने हैं। बाद में जुरिस्डिक्शन, देखो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जुरिस्डिक्शन भी सेम होती है, राइट। कंपोजिशन के अंदर भी एक तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 10। ओके, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हो गए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। इसका मतलब है देखो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन नॉट बी मोर देन 10, ठीक है। तो ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है वो भी एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अब अपॉइंटमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो इनकी अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नर करेंगे, ठीक है। हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर पढ़ा था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कमिटी थी, ठीक है, 3 मेंबर कमिटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। लेकिन जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स है उनके अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे गवर्नर, ठीक है, गवर्नर विल अपॉइंट देम, ठीक है। और गवर्नर किसके रिकमेंडेशन के ऊपर करेंगे? गवर्नर 3 मेंबर कमेटी जो होती है उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर करेंगे। तो ये 3 मेंबर कमेटी कौन सी होती है? चीफ मिनिस्टर वुड बी द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 मेंबर कमेटी, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो 3 मेंबर कमेटी है उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो गवर्नर है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, राइट। अब टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन देखो, तो देखो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, दिस इज अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर होते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, देयर वुड बी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये होती है उनकी कंपोजिशन, इनकी जो सैलरी जो होती है, ठीक है, उनकी जो सैलरी जो होती है, इनकी जो अलाउंसेस जो होते हैं, राइट, इनकी जो सैलरी होती है, इनके जो अलाउंसेस जो होती है वो डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके गाइस, गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन, मैं आपको सैलरी के बारे में बता रहा था,
बट सैलरी के बारे में आप यहीं पे सुन लो। देखो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन, ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो उसके अंदर होते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनके जो सैलरी और अलाउंसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना सैलरी और अलाउंसेस वाली जो बात है ना, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ मैच करती है, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सैलरी अलाउंसेस जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। तो ये वाली जो बात है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से मैच करती है, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स की भी सैलरी और अलाउंसेस जो है वो डिटरमाइन की जाएगी, वो डिटरमाइन की जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो गाइज ये जो स्लाइड है ना वो टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन के, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सैलरी भी बता दिया। तो देखो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स है ना उनकी जो टेन्योर, उनका जो सर्विस कंडीशन जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका टेन्योर, ठीक है, ये टेन्योर की बात कर रहा हूं मैं, कितने साल तक वो ऑफिस में रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना वो 65 इयर्स रखी गई है, ठीक है। मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स है उनकी जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी और उनकी जो मैक्सिमम एज है वो भी 65 इयर्स होगी। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो ये मैच करती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स का टेन्योर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सिमिलरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स का भी टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और दोनों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों के अंदर उनके मेंबर्स का जो टेन्योर था वो था 65 इयर्स, ठीक है। बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स दोनों भी रीअपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं, ओके। बाद में रिमूवल, ठीक है, ये जो रिमूवल है वो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो किसी भी देखो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अगर रिमूव करना होता है तो उनके जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल जो होते हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन देखो यहाँ पे गवर्नर रिमूव करेंगे, ठीक है। गवर्नर विल रिमूव द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज गोइंग टू रिमूव, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूव द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कौन करेंगे? गवर्नर। गवर्नर विल रिमूव द मेंबर्स। और कौन से ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव करेंगे? अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो, अगर वो अपनी ऑफिस के बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाता है तो, ठीक है। इफ इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, राइट। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस व्हिच इन्वॉल्व्स अ मॉरल टर्पिट्यूड, अगर उसने कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट उससे एक्वायर कर लिया है जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो सकती है। बाद में जो गवर्नर है वो किसी चेयरपर्सन या फिर किसी अदर मेंबर को रिमूव भी कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का कोई केस होता है, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का कोई केस होता है तो गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर को क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर रेफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस करता है कि ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर को रिमूव करना चाहिए तो जो गवर्नर है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर कैन रिमूव देम, राइट। तो ये सैलरी और अलाउंस के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इनकी जो सैलरी अलाउंसेस जो होती है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अब देखो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो हर साल अपने रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद दिस रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रिपोर्ट आ जाती है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो हर साल अपनी रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद इट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो ये जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट है, देखो इसके अंदर पहले क्या हुआ करता था। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019,
राइट। तो देखो अभी सबसे पहले देखो ये होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट, दिस इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दिस इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वुड बी देयर, राइट, देयर वुड बी chief information commissioner and there would be other information commissioners. Similarly state information commission के अंदर भी एक तो हो गए state chief information commissioner, right, state chief information commission, state chief information commissioner would be there, okay, and there would be information commissioners, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, राइट। तो देखो पहले क्या होता था ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली इनका जो टेन्योर था वो 5 साल के लिए बेसिकली फिक्स था, दैट टेन्योर फॉर 5 years वाज बेसिकली फिक्स्ड, ठीक है। इनका जो टेन्योर है वो ओरिजिनली 5 साल के लिए फिक्स था, लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो है, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो है जो 2019 में आया था, अब से मतलब ये एक्ट के हिसाब से इनका जो टेन्योर है, इन लोगों का जो टेन्योर है, इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब इनका जो टेन्योर है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है। इनका जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। तो ओरिजिनली क्या हुआ करता था कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनका जो टेन्योर था, उनके मेंबर्स का टेन्योर 5 साल हुआ करता था, लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से, ठीक है, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से, राइट, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के हिसाब से जितने भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स है, इनका जो टेन्योर है, राइट, इनका जो टेन्योर है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड इट, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रोविजन था। बाद में एक तो होता है, देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर देयर वुड बी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट, देयर वुड बी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड देयर आर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, एंड देयर आर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो देखो इनकी जो सैलरी है ना वो पहले फिक्स हुआ करती थी, पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी जो सैलरी थी इट वाज इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के जितनी थी, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर से मैच करती थी, ठीक है, दोनों की सैलरी सेम हुआ करती थी, इलेक्शन कमिश्नर। देखो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले क्या होता था कि ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी वाज इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड सैलरी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाज इक्विवेलेंट टू इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये पहले की बात है, लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जो है, जब से ये आया है तब से इनकी जो सैलरी है इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनकी जो सैलरी है उसको डिटरमाइन करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने, ठीक है, जब हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पे ही बता दिया था कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स है उनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी इन लोगों की सैलरी, ठीक है। तो ये कब से आया है, ये जब से 2019 के अंदर आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जब से पास हुआ है तब से ऐसा हुआ है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो देखो ये होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर एक तो होते हैं चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके, ओके, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड देयर वुड बी
स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। एक तो होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक तो होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स विच आर नॉट मोर देन 10। तो इनकी जो सैलरी जो होती है इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उनकी सैलरी इज इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी थी वो पहले इलेक्शन कमिश्नर से इक्विवेलेंट हुआ करती थी, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनकी सैलरी वाज इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये पहले की बात है। लेकिन जब से आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जब से लगा हुआ है, तब से क्या हुआ है कि जो इनकी जो सैलरी है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है, इनकी जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ओके गाइज, ठीक है। इसलिए जब मैंने आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि इनकी जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करने वाली है, ठीक है। तो ये जो था वो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट के बारे में था। अभी हम लोग देखते हैं कि आरटीआई 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 से रिलेटेड कौन सी रीसेंट जजमेंट्स न्यूज में रही थी, कौन सी रीसेंट जजमेंट्स वेर इन न्यूज, ठीक है। तो देखो एक जो था वो सेंट्रल, एक केस था सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये मैं आपको केस का नाम बता रहा हूं, वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, ये केस का नाम था, ठीक है। तो ये जो केस था वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने ऐसा बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट, ओके, पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो देखो ये जो केस था वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अंडर द आरटीआई एक्ट, ठीक है। मतलब हम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी डिस्क्लोज अंडर दिस पर्टिकुलर आरटीआई, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज हो सकती है अंडर आरटीआई एक्ट। तो देखो इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल एसेट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल एसेट्स ऑफ द जज, राइट, information about the personal assets of the supreme court judge और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी ओके, तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है, राइट। बाद में नेम ऑफ द जजेस रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम, ठीक है। तो देखो कौन सी इंफॉर्मेशन अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डिस्क्लोज हो सकती है। तो पर्सनल एसेट की जो, अगर कोई जज है, ठीक है, अगर कोई जज है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी जो पर्सनल एसेट की जो इंफॉर्मेशन है वो इस एक्ट के अंदर डिस्क्लोज हो सकती है, ठीक है। बाद में कोलेजियम ने कौन से जजेस को रिकमेंड किया है वो आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज हो सकता है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। तो अगर कोई कोलेजियम जो है उसने कोई जज को रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, इफ द कोलेजियम हैज गिवन द रिकमेंडेशन ऑफ द जजेस देन व्हाई दिस पर्टिकुलर कोलेजियम हैज गिवन द रिकमेंडेशन, ठीक है, जो रिकमेंडेशन जो है, अगर कोलेजियम ने
कोई रिकमेंडेशन दी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, तो कॉलेजियम ने किस रीजन से ये जज का नाम रिकमेंड किया है, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉलेजियम ने अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस दी है, राइट। तो कॉलेजियम ने पर्टिकुलर जजेस की रिकमेंडेशंस क्यों क्यों दी है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कॉलेजियम गिविंग द रिकमेंडेशंस ऑफ ओनली दिस पर्टिकुलर जज। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। ओके, बाद में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, अगर वो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है तो वो भी आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। तो हमने पढ़ लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आने के बाद उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है और कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती है, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ओके, ठीक है, तो ये वाली बात हमने देख ली है। ठीक है, और ये जो बात है, ये वाले जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट, ओके गाइस, तो ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। बाद में ये जो केस हुआ था, दिस पर्टिकुलर केस डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस केस सुप्रीम कोर्ट, तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जितने भी जो एनजीओज है, जितने भी जो एनजीओज है वो गवर्नमेंट में से कोई फंडिंग रिसीव कर रहे हैं तो वो भी अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर वो होंगे। ओके गाइस, बाद में जो करंटली जो एनजीओज है उसको रेगुलेट करने के लिए दो एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन अभी एनजीओज जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आ गए हैं। दिस रूलिंग वुड मीन दैट एनजीओज विल हैव टू मेंटेन records as provided under the right to information act and every citizen will have the right to get information from them। ओके, तो देखो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, दिस पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, तो एनी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी और कोई भी ऐसी बॉडी जो, ठीक है, कोई भी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट which has been established or constituted by or under the constitution, मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, कोई भी ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के लॉ से बनी हुई है, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जो बॉडी है जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी आरटीआई के अंदर आती है। लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उससे ये जो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग है उसने ये सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग को डिफाइन नहीं किया है। द आरटीआई एक्ट डज नॉट डिफाइन सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग। ठीक है, बाद में जो सेक्शन 8 है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट सेज दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेक्शन 8(1)(j) says that personal information which has no relationship to any public activity or interest or which would cause unwarranted invasion of privacy of the individual। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर किसी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है तो कोई ऐसी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, if there is any particular personal information, अगर ये कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है पब्लिक एक्टिविटी के साथ। देखो लोग आरटीआई फाइल क्यों करते हैं, आरटीआई तब भी लोग फाइल करते हैं जब भी कोई भी ऐसी कोई बात है जिससे पब्लिक एक्टिविटी को इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसी बात को जानने के लिए लोग आरटीआई फाइल करते हैं। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है और अगर वो पर्टिकुलर वो अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है पब्लिक एक्टिविटी के साथ, पब्लिक एक्टिविटी के साथ, कोई इंटरेस्ट के साथ, राइट, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है पब्लिक एक्टिविटी इंटरेस्ट के साथ और ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है अगर किसी की प्राइवेसी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इफ इट इज अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये ऐसी टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो तभी डिस्क्लोज हो पाएगी। इट शैल बी डिस्क्लोज्ड ओनली इफ द एपेलेट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज द डिस्क्लोजर ऑफ दिस सच इंफॉर्मेशन। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो
लोग आरटीआई फाइल क्यों करते हैं? लोग आरटीआई तभी फाइल करते हैं इफ दे वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया और अगर ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसी टाइप की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तब भी डिस्क्लोज होगी जब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को तुम जस्टिफाई कर पाते हो। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन तब भी डिस्क्लोज हो पाएगी। ठीक है, तो कौन कौन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो है, एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल दी राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन वो फाइल कर सकता है। ऑल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेइंग एनी फीस। ठीक है, तो जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है टू फाइल दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई भी फीस नहीं है फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, राइट। और बाकी के लोगों के लिए 10 रुपए की फीस लगती है। देर इज अ नॉमिनल फी ऑफ ₹10 विच में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट के साथ ये वेरी भी कर सकती है। Okay guys, so here we come at the end of the lecture. Thank you very much for listening.